term, short term, and medium term. So that is the reason why. Sumit had sent me the WhatsApp message. So that's how I came to know about it. So you come here to work as well? I had made an inquiry Okay. because for my new company, initially I'll be operating from a co-working space. So Okay. that's how I've come over here, and probably that's the reason how Sumit had my number. We get something out of the session. Okay, do we need to take notes or you provide us with the presentation? Like presentation as of now, I was not thinking to provide. You can just make notes of. Okay. And later, if you want the PPT, then I'll be sharing you my number. You can just request. Yeah, I'll give you my email ID, you can mail it to me. Because that becomes easier. So I making understand. notes, then I understand. your focus is not there. Like we'll wait 5 more minutes. Just 5 minutes wait. प्रोजेक्टर बंद हो गया. It will take time. I'll start. Now it does start. Hello all. So today's session is Talk on Investment, and I am CA Shalini Sharma, a practicing chartered accountant, and we all are assembled here. So the purpose of this free workshop was to create an awareness amongst all of you, because most of us are just reading on newspapers or maybe Facebook campaigns or maybe YouTube about investment, but I think hardly any one of us does it. So how many of us are investors here? Okay. So if I talk about
of investment, what do you understand by that? What thought comes in your mind? What do you think? मतलब if I say कि investment क्या होता है, so what thought comes in your mind? Savings. Okay. FD. FD. Stocks, putting money in stocks. Okay, so someone said profit, FD, savings. So like someone said savings. Okay, so savings means what? Can you just like elaborate it? Anyway, any kind of investment, be it FD, be it profit, be it putting it in Profit shares. is not an investment. Yeah. So, not specifically any mode of investment, but just investing so that you can use it in your, for future. So, mutual funds and stock. So, savings and profit is not an investment. If we concise it. FD is a form of investment. Mutual fund stock is a form of investment. Okay? So, आप देख रहे हो कि आप लोग सब जानते हो कि इन्वेस्टमेंट क्या है, but exactly you don't know what it is. It's a very common term, but at times it happens that it is just like बातचीत के form आप use करते हो. You are not actually availing it. And again, I've like written on my flyer if you have received that it's time to think about passive income. Okay, before this, how many us wants to retire soon? आप लोग सब 60 में retire होना चाहते हो. I also want to retire soon. So only 2 of us. Okay. And you are 60. So how soon you planning to do that? I plan to retire at 45. Same here. Okay, so 40 max. okay, so like 3 of us wants to Mama, you want to retire at 60? Okay. No. My question is not that like you become idle. My question is that we all are working very hard in our lives. Okay? Most of us are like into job or self-employment. Like if I'm practicing CA, so I'm into employment. Some of you must be into business. Some of you must be into job. So whatever we are doing now is a form of activity. Whatever, job, business, जो भी आप कर रहे हो, सब active income है. इस income पे ही focus करोगे, तो I bet you will never retire early. Maybe आप 80 में भी retire नहीं कर पाओगे. Because you'll always be in need of money. You'll always want to go to the office. You always want to sit in the office for 9 to 6, 9 to कभी-कभी तो 9 to 9 भी लोग बैठते हैं. Because they are so much in need of money कि उनको लगता है कि ऑफिस जाना जरूरी है. तो through this way आप रिटायर नहीं कर सकते. But if you focus on your passive income, I bet you that you will retire soon. मतलब 45 तक तो आराम से retire हो जाओगे. And if I like compare between active and passive income, it is like active. Warren Buffett says that if you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work till you die. So, like, choose. So, the difference between active income and passive income is that active income में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको सैलरी आती है, आपके पेचेक आने से पहले आपके एक्सपेंसेस के, है ना रमेश जी, आते हैं, एक्सपेंस पहले आ जाता है कि अच्छा सैलरी आएगी, EMI देना है, ये देना है, वो देना है, and then all finish. You don't save, right? But when I talk about passive income की सबसे खास बात ये है कि आपको टाइम और मनी का कोई लेना देना नहीं है. मतलब टाइम और मनी का लेना देना है, बट आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है. You don't need to sit in the office and earn. So, and the second benefit is it is highly scalable. Active income is not scalable, is it? Just 10%, 15%, 20% हाइक मिलता है और उसके बदले में आपको 10-10, 12-12 घंटे ऑफिस में बैठना पड़ता है. बट पैसिव इनकम में ऐसा कुछ नहीं होता है.
अब पैसिव इनकम, तो अगर मैं आपको आज बोलती हूँ कि आप पैसिव इनकम पे फोकस करो और पैसिव इनकम स्टार्ट करो, सो व्हाट विल बी द मिनिमम फिगर दैट इज इन योर माइंड टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट? अगर एक मिनिमम फिगर आप कितना बेयर कर सकते हो कि ठीक है, अगर एक महीने में मुझे इतना अपने पॉकेट से निकालना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसिव इनकम में, तो हाउ मच यू कैन लाइक स्पेंड, कितना पैसा आप निकाल सकते हो? Starting from 2000 5,000. मिनिमम 500. ओके 500, तो चलो सबसे छोटा फिगर 500 है, ठीक है, मैं 500 लेती हूँ। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने, फॉर एग्जांपल व्हाट्स योर नेम? Rajneesh. ओके, रजनीश का कहना है कि वो 500 रुपीज हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर रजनीश ने 500 रुपीज इन्वेस्ट किया और मान लो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो टू बी ऑन द सेफर साइड आई एम अज्यूमिंग कि 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और रजनीश ने 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, या चलो 10 इयर्स ले लेते हैं। So Rajneesh has invested just a sum of 500 rupees, 500 rupees a month for 10 years without thinking anything. He has just invested only 500. 500 तो आजकल I think हर दिन आपका खर्चा हो जाता है। हम सबका लाइक सुट्टा मारने में, चाय पीने में, मैगी खाने में, blah blah blah. There can be any number of things. किसमें? कैब में. But if you like start, see, investment is all about commitment and habit. अगर आज मैं सेशन ले रही हूँ, आप यहाँ से जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो ये आपको बस जादू लगेगा और you will just talk amongst people. But if you really want to increase your wealth, you have to make a habit of making investments every month, or maybe lump sum आपको करना है, it's your choice. But you have to start it. So आप देख सकते हो कि 500 रुपीज कैसे 1,37,600 रुपीज हो गए। अगर रजनीश ने बोला कि ठीक है मैं 500, रजनीश तो शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई आइडिया, ही इज अ नो नथिंग पर्सन। ही जस्ट थिंकिंग ठीक है 500 रुपीज मैं ना ही बैंक में डालता हूँ, ना ही मैं शेयर मार्केट में डालता हूँ, इसको हर महीने मैं अपने वार्डरोब के लॉकर में 500 रखते जाता हूँ 10 years तक। ही डज दिस, तो उसको कितना 10 years के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट? 60,000. So can you see the difference between 1,37,000 and 60,000? एक 500 के इन्वेस्टमेंट से अगर आप इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कितना डिफरेंस आ गया। Isn't it? अब आपको थोड़ा बड़ा फिगर लेके मैं बताती हूँ, ये आपको इतना एक्साइटिंग अगर नहीं लगा तो। For example, if you have invested 1 lakh rupees and let's say like 12% rate of return आ रहा है, which is like very less. Minimum अगर investors के point of view से आप सुनो, तो minimum 15% rate of return निफ्टी, अगर आप बात करो शेयर्स मार्केट की या म्यूचुअल फंड की, minimum 15% rate of return you get. But I have assumed that rate of return is 12%, and the person has invested it for 10 years. So अगर 1 lakh rupees आपने 10 year के लिए invest किया है, it becomes 3,10,000. Similarly, अगर 1 lakh rupees आपने 20 years के लिए invest किया है, तो that same 1 lakh rupees becomes 9,60,000. And same 1 lakh rupees invested for 30 years, and it becomes 30 lakhs. That same 1 lakh rupees, you are not. Yeah. So yeah, you want the calculation of it? That how it is better. ठीक है, I'll come to that. Just a minute. So you can see that 30 years में. So now I come to how it is happening and what is the concept behind it. It is all happening because
compound interest पढ़ा है? All of us have studied. So can you like calculate if I invest 1 lakh rupees for 10 years at the rate of 15%, कितना compound interest बाकी total आता है? Can you calculate? I have a calculator if you want. नहीं आता है? Okay. तो मैं इसको निकाल के बताती हूँ. आप Excel में जाना. Excel में जा करके इससे अभी बात Okay. So like ma'am, your question was that how it is coming. Like आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स में या बहुत टाइम आपके पास म्यूचुअल फंड कोई मैनेजर होता है अगर आपके फ्रेंड सर्कल में तो बोलता है अरे यार चल ना तू इन्वेस्ट कर मैं तेरा पैसा डबल करा दूंगा मैं लाख रुपए का 1 करोड़ करा दूंगा. You must have come across these kind of conversations in your day-to-day life. So how it happens? कैसे वो लाख रुपए का 1 करोड़ बना देता है या XYZ जो भी फिगर है वो बना देता है वो मैं आपको दिखा रही हूँ. You go to your Excel. You actually this concept is called present value and future value and like it is a wide concept so like एक पूरा दिन लग जाता है इस concept को clear कराने में so like मैं बहुत short में इसको कराऊंगी ठीक है. You write here equal to FV. FV means future value of sum invested today. So if you are investing X amount today 10 साल के बाद आपका amount कितना हो जाएगा that is future value. Okay. So I'll write here future value, bracket and rate. So rate I have supposed that it is 15%. And NPR is number of periods means number of years कितने time के लिए हमने invest किया है. So let's say we have invested for 10 years. Okay. And payments, PMT means payments. Payments means if you are investing every month then we will write in payments area. But since I am investing like अभी लमसम का एग्जांपल लेते हैं कि हमने वन टाइम इन्वेस्ट किया तो फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट्स में कुछ भी नहीं किया अभी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ले रही हूँ क्योंकि मैंने पीपीटी में 12% किया हुआ था मैम आपके कैलकुलेशन के पेमेंट्स विल बी जीरो बिकॉज वी आर नॉट डूइंग मंथली पेमेंट्स एंड देन आफ्टर दैट पीवी लिखा हुआ आ रहा है सो पीवी इज प्रेजेंट वैल्यू मीन्स व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग नाउ एट दिस मोमेंट. So present value क्या होगा? Minus 1 lakh. Why minus 1 lakh? Because 1 lakh you are it is going from your pocket. It is your आपके अकाउंट से वो निकल रहा है. Just to make it very simple in a layman language. And bracket close. When you enter it, it comes 3,10,580. And if I That 1 lakh amount is one time for the 1 year, complete 1 year, and it's one time, not monthly. this 1 lakh amount that I invested, this I have invested for 10 years. So, okay, just one time, 1 lakh amount. बस हमने लाख रुपए डाल के छोड़ दिया है और उसके बाद हम 10 साल के बाद उसको देखते हैं कि ठीक है अभी मुझे पैसे चाहिए तो मेरा कितना पैसा होगा तो 3,10,000 हो जाएगा. सिमिलरली देखिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग में दो बेनिफिट्स होते हैं. एक तो आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है दैट इज कंपाउंडिंग एंड टाइम वैल्यू इज ऑल्सो इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल इसी सेम फिगर को इसी सेम अमाउंट को आप 10 साल के बाद आप बोलते हो कि ठीक है 10 साल में तो मुझे पैसे नहीं चाहिए मुझे 20 ईयर्स में पैसे चाहिए. ओके सो इफ आई एंटर हियर 20 आप देखो ये अमाउंट हो जाता है 9,64,629. क्योंकि उसका इंटरेस्ट प्लस जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट आपको मिलते रहता है. ठीक है. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपने बोला कि ठीक है सिंस यू आर नॉट एन इन्वेस्टर आप लोगों ने बहुत सारे लोग एफडी करते हैं. एफडी कौन कौन कर रहे हैं और और आप लोग कुछ नहीं बस काम है मतलब आरडी करा हुआ है. ओके तो बहुत सारे लोग यहाँ 3 तरह के लोग हैं. एक तो जो दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टमेंट्स लाइक आई थिंक आई बाय द पेज यू नो लाइक उसने कुछ नहीं
जिसने बैंक में सेव किया है, सिर्फ बैंक में मतलब पैसे रखे हैं आपके, एक्चुअली बैंक में भी रख रहे हो ना पैसे एटलीस्ट, ठीक है ओके, तो मैं बैंक ले रही हूँ. There are few people who have invested in FD and there are few who have invested in market, stock market. Okay? Like जो बैंक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो बैंक में आपने पैसे रखे हैं, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपको पता है ये? 7-8%. Who said? 3.5% to 4. Max 4. It's between 3 to 4%. 7% किसको मिल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में? That is on FD. Kotak देता है 6%. That is in savings. Yeah, normal saving accounts it's between 3 to 4. something देता है. Yeah. Agreed, everyone is agreed that you get only 4%, not 7%. Kotak 6 देता है. No, no, कोई 7% नहीं देता है आपको बैंक में. Okay, so मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस है, ठीक है, आपने उसको कुछ नहीं किया हुआ, सर ने बोला कि सर ने कुछ नहीं किया है, यू जस्ट केप्ट योर मनी इन बैंक. ओके, सो अभी मैं देखती हूँ सर का कितना अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है. अगर बैंक में ये फिक्स्ड इनकम फिक्स्ड अमाउंट रहा तो फॉर एग्जांपल बैंक आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, 10 इयर्स के लिए रखते हैं इसको, पेमेंट 0 minus 1 lakh. This formula is clear to everyone. सर का होता है 10 साल के बाद लाख रुपए 1,48,000. मैम ने बोला कि मैम एफडी करती हैं, तो मैं मैम का भी देख लेती हूँ. रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का क्या है? मैं मैक्सिमम 8 ले रही हूँ, वैसे 8 कोई नहीं देता, इट्स 7. आज 7 में भी आपका टीडीएस कट जाता है जो इंटरेस्ट आपको होता है. So I am taking 8%. Okay. And 10 years. Payment will be 0 minus 1. मैम ने भी पैसे कमाए, मैम ने लाख रुपए एफडी में लगाया, थोड़ा स्मार्ट मूव था, तो मैम का 2,15,000 हो गया. अब सर ने बोला कि सर ने मार्केट में लगाया पैसा. फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% मिलता है. 10 years and payment is 0 minus 1. Good. इतना बड़ा फिगर है कि ये हमारे साथ है. Okay. See the difference. सर ने मार्केट में इन्वेस्ट किया, म्यूचुअल फंड लिया होगा, शेयर लिया होगा, स्टॉक लिया होगा, ठीक है. He is the most clever person here because he has also earned 1 lakh rupees, but since he has invested wisely, his 1 lakh rupee is now 4,04,000. So अभी आपको पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या? Markets, there is a term, it is subject to risk. Mutual fund will be risk. So that is the only thing which differs market and banks and everything. करेक्ट, ठीक है. चलो मार्केट एकदम डूब गया, क्रैश हो गया मार्केट, फिर भी मिनिमम कितना मांगते हो आप? मिनिमम कितना होगा? इंडिया की इकोनॉमी जीरो तो नहीं हो सकती. नहीं, but हो सकती है. stocks तो zero हो जाते हैं. For example, अनिल अंबानी, you can take yes Arcom. Arcom, सारे अनिल अंबानी के. एक्चुअली ये जो आपका क्वेश्चन है ना, उसका आंसर क्लैरिटी आपको लास्ट में मिल जाएगा. So I think we can shift it to the last. You can write it surely because ये important question है, because most of the लोगों के अंदर ये fear होने की वजह से कि मार्केट डूब जाता है, don't invest only. So I will not give you that advice कि आप पैसे डुबाने के लिए पैसे लगाओ. I have a mantra for you, जिसमें आप इन्वेस्ट करोगे तो I guarantee you कि आपको लॉस नहीं होगा. Okay? So power of compounding is clear to all of you. मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू आपको जानना होगा. अब आप सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो, इट्स इजी ना. कैलकुलेटर को यू डिडंट सी एन अपॉर्चुनिटी, यू शुड हैव कैलकुलेटेड. ओके, मैं भी नहीं कर पाती. ओके, सो अब ये सब देखने के बाद एवरीवन वांट्स टू बी रिच, आई गेस. Yes. प्लीज रेज योर हैंड्स. Yes.
बट आपके मन में क्वेश्चन फिर से आएगा कि वेरी रिच कैसे हो सकते हैं, आ रहा होगा ना ये क्वेश्चन, क्यूरियोसिटी तो बड़ा होता है मन में, आई नो मैं क्रिएट भी कर रही हूँ कि आप क्यूरियस हो थोड़ा. ओके, सो ऑल ऑफ यू हैव हर्ड ऑफ वॉरेन बफेट. हाउ मेनी ऑफ अस? सो वॉरेन बफेट जिन लोगों को नहीं पता है, वॉरेन बफेट is the fourth richest man of the world, and surprisingly all the wealth that he has made is through passive income. Through passive. वो बस अब क्या करता है? He just read books, just have his coke, have his burger, and he enjoys life. Because he was so visionary that he started to think of passive income at the age of 6 years. आप लोग क्या करते थे 6 years में? मतलब मैं भी कुछ नहीं करती थी 6 years में. I used to just play. कोई नहीं कुछ करता था ना. So 6 years में what he used when he was at age 6 years, he went to his grandfather and he said his grandfather has a shop. So he said that I want 6 Coke bottles. He took 6 Coke bottles and he sold those Coke bottles at 5% profit. And he earned that profit. So when his friends were playing in the play garden, he was making money. So at the age of 6 he started making profit. Just imagine. हम लोग कितना लेट हैं. ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल बताई. When he was 11 years old, he was an investor. He started investment at the age of 11, and that is why he is the 4th richest person of the world with $8.4 million wealth. $88.4 billion wealth. Just because we don't have awareness, we don't have knowledge, इंडिया में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को एक फियर बना के रखते हैं. उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट डूब रहा है, सबके पैसे डूब गए हैं, तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर आप इंडिया की इकोनॉमी को बूस्टअप करना चाहते हो, अगर इंडिया को एक ग्रोइंग कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री को देखना चाहते हो, तो वी ऑल हैव टू डू इन्वेस्टमेंट्स एंड इट इज वेरी गुड फॉर अस आल्सो. आप देख रहे हो ना, आपका मैंने एग्जांपल दिखाया था ना कि अगर आप बैंक में पैसे रख रहे हो, तो आप बैंक में पैसे रख के 1,48,000 करते हो 1 लाख को. अगर आप एफडी करते हो तो 2,15,000 करते हो, और अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप 4,04,000. एंड फॉर हैव यू वर्कड हार्ड फॉर दिस फिगर? नो. This was multiplying while we were sleeping, and that's what Warren Buffett said. So you really want to be rich? Yes. कोई motivate मतलब कोई? Okay. Very rich. Okay. So. Maybe just one question. Yeah. So, like say for example, I have a fixed income of say 3 lakh rupees per month. Just assuming. Fixed income means you say active income. Active income. Now tomorrow I want to get into investments. Alright. So now whatever money I have, I'm say for example putting it into investments, whether it's in mutual funds, FDs or equity, whatever. So this money over a period of time is going to grow. You know, if you say 10% or 15%, so this maybe say I put 10 lakhs. So 10 lakhs over a period of time with compounding and all will keep on growing. How do I take care of my monthly expenses? So like say for example, if I need 2 lakh rupees per month for my household expenses and other things, you know, if all the money is invested, now this money is going to grow and that money is going to grow further. Now, do you mean to say that this income, like say these guys who are all working over here, now over a period of say 10 years, 15 years when they want to retire, alright, so this money will become double, triple or 4 times, whatever. Yeah. Okay, and that's when they will probably start using that money. But if somebody wants to have a passive income, तो वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से आप 2 लाख रुपए निकाल के आपका घर कैसे चलाओगे? इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा सेशन. हाँ, you will get this answer. Actually, you have to calculate and
plan. You cannot invest all the amount. I just need to So understand. that calculation I'll tell you. That rule I will tell you, जो investing का होता है, and with that rule you can invest. Okay, with the investment, the money is going to be there. You know, in stock, you cannot keep on selling your stocks. आपने जैसा एक स्टॉक है, आप 100 रुपए में खरीदा, वो 125 हो गया, तो आपने जो कमाया वो आपने विड्रॉ कर लिया. I mean that profit whatever you're going to make, you're going to carry on, you know, either You reinvest mean to it say or- that we are keeping that amount for 10 years, तो वो उस money को हम use नहीं कर पा रहे हैं, और फिर हमारे Yeah. खर्चे कैसे चलेंगे? Yeah, right? so when So you I have passive an answer. income, you need to have something to keep your household or your monthly expenses running. I mean, Ongoing expenses. ongoing expenses, yeah. So that is why I told you na that we have to focus more on active income to earn money, but how to generate money or money with money we have to focus Then on if passive income. somebody wants to be an investor, उसको like say 40 में मेरे को retire करना है, मेरे पास में 80 बन गई है, like I have say some amount of money in the bank in investment. Now how can I use that money to run my household expenses I without will working? tell you. मतलब last तक you will get the answer. And if you even if you don't get the answer, if you are not satisfied, then we can sit together. Sure. Okay, so what Warren Buffett said that he wanted to become rich and he had never doubted. So if now you have to promise yourself that if you really want to be rich, you don't have to doubt yourself. And you have to make it a habit of being an investor. So all of you are with me. All of you are committed Yes. to invest. All of you are ठीक है. Good. Okay. So now Warren Buffett, since Warren Buffett is the god of investment. मतलब भगवान है वो हमारे लिए. जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो भी लोग इन्वेस्टमेंट की बुक्स पढ़ते हैं, all books are derived through Warren Buffett's concept. So he is like father of investment. So what he says that if you really want to become rich, you have to invest in stock market. Okay. Now stock market किसको पता है यहाँ पे? क्या होता है? Stock exchange. Stock market और National Stock Exchange. these are not stock markets. A place where a buyer and seller can bid in a particular company which is listed. So I think 5% of us are aware of what is stock market. Sensex. Sensex is not a stock market. Okay, so roughly around like ठीक है 2% of us knows that what is stock market. Okay, so what is stock market? Where is stock market? आपके मन में कोई भी परेशानी है, सबका सोल्यूशन है मेरे पास. That enter index fund. अभी आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा इंडेक्स फंड में क्या बोला, सब एलियन लगा होगा. उसके पहले मैं थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का ब्रीफ देती हूँ आपको, उसके बाद आपको इंडेक्स फंड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. सो इफ आई टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, मोर देन 5000 कंपनीज है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट किए हुए. लिस्ट मतलब जो छोटी छोटी कंपनीज होती है वो सर्वाइवल के लिए वर्क करती है, लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है वो ग्रो करने के लिए वर्क करती है, उनको पैसे चाहिए होते हैं. तो वो जो इंडियन गवर्नमेंट है या वो बोलती है कि आप अपने स्टॉक मार्केट को लिस्ट कराओ. लिस्ट कराओ मतलब आप मेरी डायरेक्टरी में अपने आप को लिस्ट कराओ कि हाँ ठीक है आप बड़ी कंपनी हो, आप अच्छा काम कर रहे हो. तो जब बड़ी कंपनीज को और ग्रो करना होता है तो उसको उनको लोगों से पैसे चाहिए. अब लोग कौन है? लोग हम लोग हैं. तो स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनी लिस्ट होती है वो हमसे पैसे लेती है. जब हमसे पैसे लेती है तो वो बदले में अपना शेयर लेती है. फॉर एग्जाम्पल अनिल अंबानी बोलता है कि मैं आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया बट स्टिल आई नीड मनी. तो वो क्या करता है? वो बोलता है कि ठीक है आप पैसे दो मुझे कंपनी चलाने के लिए, बदले में मैं आपको ओनरशिप दूंगा. मुकेश अंबानी बोलता है कि अगर आपको मनी चाहिए, अगर उसको मनी चाहिए कंपनी रन करने के लिए, तो वो आपसे पैसे लेता है और वो बदले में आपको स्टॉक देता है. ठीक है. जब स्टॉक देता है तो आप क्या बन जाते हो? कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाते हो. एंड शेयर होल्डर्स आर एक्चुअली व्हाट? दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. ओके. उसके बाद उस शेयर पे आपको कंपनी डिविडेंड देती है, प्लस उस वो जैसे फॉर एग्जांपल आज शेयर का वैल्यू 100 रुपये का है. 10 साल के बाद या 5 साल के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत बूम हो गया. रिलायंस इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और उनका शेयर वैल्यू 100 रुपये से 2000 हो गया.
आपको 1900 तो मिलेंगे अगर आप उस टाइम पे शेयर सेल कर रहे हो तो आपको 1900 का गेन हुआ, प्लस आपको एवरी ईयर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको डिविडेंड भी देता है। ठीक है, एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? फिर से रिपीट करो। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक मार्केट है। मैं और डीप में जाके मतलब बिल्कुल और बेसिक में जाके बताऊं या कैसे आप मतलब कैसे बताऊं? थोड़ा और डीप में जाऊं? ओके, ये स्टॉक मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट में लेट्स से 5000 कंपनीज हैं इंडिया की, हर कंपनी है यहाँ पे। अब ये कंपनी को पैसा चाहिए क्योंकि ये खुद इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि ये अपने पैसों से ही बिजनेस कर सके। तो ये क्या कहती है? ये कहती है कि ठीक है, मैं खुद से बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे आपसे पैसे की जरूरत है। अब पैसे की जरूरत किससे हो सकती है? तो हम लोग कॉमन मैन से हो सकती है। तो आप क्या करते हो? कंपनी बोलती है कि ठीक है, मेरा शेयर आप खरीद लो। शेयर मीन्स एक कंपनी की राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्रॉपर्टी में, तो मैं प्रॉपर्टी एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, एक फ्लोर में मान लो 10 कमरे, ठीक है। अब 10 कमरे में से आपने बोला कि मुझे एक स्पेस चाहिए, तो आपने 10 कमरे में से एक कमरा ले लिया, तो जो एक कमरा है उसके आप ओनर बन गए। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी अगर आपने एक शेयर ले लिया तो उस एक शेयर के आप क्या बन गए? शेयर होल्डर बन गए। यू आर होल्डिंग दैट शेयर, indirectly you are the owner of the, you have become the owner of the company. Clear? अब उसके बदले फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर आज ये खरीदा था 100 रुपए का, लेकिन अभी से 10 साल के बाद ये शेयर जो हो गया वो 5000 रुपए का हो गया। अब आपको पैसे की जरूरत आ गई, तो ये 5000 जब आप इस शेयर को 10 शेयर को आपने मान लो 10 शेयर लिया था, या फॉर एग्जाम्पल एक ही शेयर लिया था, आपने ये एक शेयर बेच दिया, तो जब आप एक शेयर बेचोगे 10 साल के बाद, तो आपको कितना गेन होगा? 4900 का गेन होगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन शेयर। I am sure that you will not just buy one share, you will buy minimum तो 10 बाय करोगे आप। तो शेयर मार्केट वर्क्स लाइक दैट। अब मैं बताती हूँ, शेयर मार्केट में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं। आप सभी सुनते हो ना, न्यूज में चलते रहता है नीचे, एक सेंसेक्स चलते रहता है, एक निफ्टी चलते रहता है। सो शेयर मार्केट में 2 मेजर एक्सचेंज, 2 मेजर डिपार्टमेंट्स आप बोल सकते हो या हेड ऑफिसेस बोल सकते हो। तो 2 मेजर हेड ऑफिसेस है, एक है एनएससी, एक है बीएससी। एनएससी मींस, बीएससी मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका हेड ऑफिस बॉम्बे में। This is the oldest exchange of India, Bombay Stock Exchange. And one is NSE, means National Stock Exchange, जिसका हेड ऑफिस दिल्ली में। अब ये दोनों जगह शेयर्स लिस्टेड है। NSE और BSE में एक चीज कॉमन है, पहले मैं BSE का बता देती हूँ। BSE में भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, उसमें एक इंडेक्स होता है सेंसेक्स, जो आप देखते रहते हो, न्यूज में चलते रहता है। सेंसेक्स मीन्स सेंसिटिविटी इंडेक्स, आपके मार्केट के सेंसिटिविटी को वो देखता है और उसके बाद वो अपने पैरामीटर्स दिखाते रहता है। एंड एक होता है निफ्टी। निफ्टी मींस टॉप 50, निफ्टी इज आल्सो एन इंडेक्स ऑफ एनएससी। निफ्टी इज लाइक ग्रुप ऑफ 50 कंपनीज, टॉप 50 कंपनीज, जिसको जायंट कंपनीज बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5000 कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो टॉप 50 कंपनीज हैं जो इंडिया, जिसका मार्केट कैपिटल ज्यादा है। मार्केट कैपिटल मींस जिसका वर्ड बहुत ज्यादा, मतलब मार्केट कैपिटल थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं एक बार बोलूंगा, समझ आता है? ठीक है। मार्केट कैपिटल मींस फॉर एग्जांपल 5000 कंपनीज हैं। अब जिस 50 कंपनी का मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा होगा वो निफ्टी में आ जाएगी। अब मार्केट कैपिटल क्या होता है? कोई भी कंपनी की नंबर ऑफ शेयर्स
into market price of share. इस कैलकुलेशन के बाद जो यहाँ वैल्यू आता है, जो टॉप 50 कंपनी होगी वो सब मतलब 5 लाख कंपनी का ये वैल्यू निकाला जाता है और उसमें से जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू होगा उसमें से 50 कंपनी को सिलेक्ट करके निफ्टी में डाल दिया जाता है. मींस निफ्टी इज एक्चुअली टर्निंग योर इकोनॉमी. आपकी इकोनॉमी में क्या मूवमेंट हो रहा है, निफ्टी इज मोस्टली एट 90%. इट इज द क्लियर पिक्चर ऑफ योर इकोनॉमी. एनी क्वेश्चंस हियर? क्लियर है? अब निफ्टी जैसे निफ्टी होता है वैसे नेक्स्ट 50 होता है, स्मॉल कैप होता है, लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है. आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू इट. I have a question. This top 50 company which are listed in Nifty, so ये change होते रहता है with the time or Yes, is this it fixed? changes. Yes. It changes with time. And how frequently it changes? How frequently? I cannot say. Every But- 6 months, I think. Means I have no at least idea. for an year this is in the start of financial year At they least must for a be. year तो it happens, but it is like मान लो कि जो जैसे for अभी वोडाफोन जो है, it is like not in existence only. Yeah, its share has So came down it was never in that 50 company. Okay. It was never in. I told you that 50 company is the top giant companies. हम्म. जिसको कितना भी हिलाओ, कितना भी मूव करो, वो टूटता नहीं है. बट अगर आप बोल रहे हो कि वो 50 कंपनीज सिर्फ 50 कंपनीज पूरे जीवन तक रहेगा तो वो नहीं है. Some small company which is making big progress will enter that top 50. There are other criteria also. मतलब उसका मार्केट कैप बड़ा अगर हो गया तो भी कम है. Okay. Okay. So why I told you about stock market, because मुझे आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताना है. Okay? तो मैं अब आपको इंडेक्स फंड के बारे में बताती हूँ. तो इंडेक्स फंड क्या होता है? Index fund is a type of mutual fund, but it is very different from mutual fund. And now I tell you why it is different. Okay, mutual fund. ठीक है, mutual fund में mutual fund क्या होता है? इन्वेस्ट किया था SIP उसमें मंथली डिडक्शन जो फिक्स हो कर लेते हैं वो डिडक्ट करते रहते हैं ईयरली बेस पे, या फिर मेरी ईयर का ले लो. जैसे मैंने S&P की 5,000 पर मंथ की उसमें 3 years की, तो मैंने 1.5 year के बाद ब्रेक कर ली. अकाउंट पे क्या होगी ठीक है, तो मैम एटलीस्ट यू हैव मतलब एक मूव आपने लिया. बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं करते हैं. मैंने बोला ना कितने सारे लोग देखो बैंक में ही पैसा रखते हैं. सो इट्स अ गुड थिंग, बट बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं होती, इस वजह से हमें बहुत लॉसेस हो जाते हैं. आप उस 500 को इन्वेस्ट कर सकते थे अगर आप उसको वाइजली प्लान कर ले तो. मैं आगे आपको बताऊंगी आप कैसे कर सकते हो. सो बिफोर दैट व्हाट इज म्यूचुअल फंड? इसी What is mutual fund? When you invest in a group of companies, it could be Sensex, index companies, or the Nifty companies, or it could be a group of small companies. So when you invest, they create a fund where they invest in a group of diversified companies. So it could be a diversified fund, it could be an index fund, it could be a debt fund. So when the money is invested not only in one script, but it is invested in a group of scripts. You are very close to it. So all of you are not aware or not aware? Mutual fund you are not aware. Okay. कोई बात नहीं. मुझे भी नहीं नॉलेज थी तो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया. ओके. ठीक है, तो मैं म्यूचुअल फंड की आपको एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ. Mutual fund is, and see, I am not explaining any concept with the point of investor. I am explaining all the concept कि आपको भी समझ आ जाए. तो आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो you can ask. तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट ऑफ फंड. सॉरी, म्यूचुअल फंड इज अ बास्केट. उस बास्केट में क्या होता है? बहुत सारी शेयर्स होती हैं. अब म्यूचुअल फंड भी बहुत टाइप का होता है, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ. लिक्विड फंड होता है, डेट फंड्स होता है, हाइब्रिड फंड्स होता है, अल्ट्रा शॉर्ट फंड्स होता है, सॉल्यूशन फंड्स होता है. आई एम नॉट गोइंग टू दैट.
जस्ट नॉर्मल कॉमन सेंस के लिए आप समझो कि म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है जिसमें बहुत सारे शेयर होते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो, आपका दोस्त है या आपको कहीं से पता चल गया नेट से ऑनलाइन म्यूचुअल फंड एडवाइजर के बारे में आपको पता लगा, आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर बोलता है सर एक काम करो, आप महीने का 10,000 रुपए या साल का मुझे 10,000 रुपए दे दो, मैं आपके लिए फंड ले लेता हूँ और उसके बदले में आपको जब मेच्योर हो जाएगा, जब तक के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट करो, उसके बाद आपको पैसे मिल जाएंगे। आप कुछ नहीं करते हो बिकॉज आपको लगता है कि ये सब मेरे बस का नहीं है, आप म्यूचुअल फंड मैनेजर को एडवाइजर को पैसे देते हो। अब वो कौन सा फंड लेता है, क्या लेता है, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, वो अपने हिसाब से चूज करता है। अब इस फंड में कौन सा शेयर रखना है, कितना वेटेज रखना है, वो सारा कुछ म्यूचुअल फंड मैनेजर डिसाइड करता है और आपके लिए इन्वेस्ट करता है। इट हैपेंस लाइक दैट। सो इफ यू हैव इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड, इट हैपेंस लाइक दैट। सो म्यूचुअल फंड क्या होता है समझ आ गया ना। अब म्यूचुअल फंड बहुत सारी होती है, बहुत सारी, हर कंपनी का आप देखोगे, आईसीआईसीआई का, यूटीआई का, एचडीएफसी का, एसबीआई का, हर बैंक ने आजकल अपना अपना म्यूचुअल फंड बना रखा है और उन्होंने म्यूचुअल फंड एजेंट्स को भी हायर कर रखा है जिनको वो कमीशन देते हैं, वो आपसे भी कमीशन लेते हैं, ऐसे वर्क करता है। अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, म्यूचुअल फंड जो है वो भी दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक होता है पैसिव म्यूचुअल फंड। आज का सेशन में आप हमेशा इंपॉर्टेंस दीजिएगा पैसिव म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है, पैसिव के बारे में बात करें। अब एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फंड मैनेजर आपको बोलता है कि आप अपना पैसा दो और हम आपको इन्वेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि फंड मैनेजर आपसे पैसा लेता है, वो ऑब्वियसली फ्री में तो पैसे आपके इन्वेस्ट करेगा नहीं, वो आपसे पैसे चार्ज करता है। जो पैसे चार्ज करता है उसको फीस बोलते हैं, या मतलब कॉमन मैन के लिए फीस है, बट इन्वेस्टर के टर्म में इसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। अब ये एक्सपेंस रेशियो दो तरह का होता है, एक रेगुलर फंड्स, एक डायरेक्ट फंड्स। जब भी आप रेगुलर फंड्स में इन्वेस्ट करोगे तो एक्सपेंस रेशियो बहुत हाई होता है, बिकॉज ये रेगुलर फंड्स में ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है। डायरेक्ट फंड्स में फंड मैनेजर नहीं होता है, इसलिए कंपैरेटिवली एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, ठीक है। एक होता है आपका पैसिव म्यूचुअल फंड। अब ये जो फंड मैनेजर था, मैंने बोला इसमें क्या ऑप्शन है इसके पास, चूज एंड पिक। ये अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से चूज करता है शेयर और चूज करके पिक करके आपके बास्केट में डाल देता है, ओके। ये फंड मैनेजर बोलता है कि मैं आपको मार्केट से भी ज्यादा रिटर्न दूंगा, मैं आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीद के उसका एक फंड बनाऊंगा और उसमें इन्वेस्ट करूंगा आपके लिए, ठीक है। बट पैसिव म्यूचुअल फंड में चूज एंड पिक ऑप्शन नहीं होता है। आप जितना पैसा लगाते हो, ये आपका सारा पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट हो जाता है। वेटेड एवरेज, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 लगाए तो ये 10,000 से आप पूरी 50 कंपनी का शेयर खरीद लेते हो, क्लियर? कुछ समझ आया थोड़ा? If you have any confusion and doubt, तो you can ask it, because इसके बाद इससे रिलेटेड टॉपिक है तो मे बी आपको नहीं समझ में आएगा। निफ्टी जैसे भी चेंज होता रहता है तो कंपनीज की और उसके मतलब वैल्यू के बेसिस पर, तो क्या आपका भी वैल्यू चेंज होगा? नहीं, मतलब मैं वही पूछना चाह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया निफ्टी में, पैसे म्यूचुअल फंड्स में, एंड दोज 50 कंपनीज आर अभी मेरे पास जो है वो है, लेकिन आफ्टर ईयर और टू दोज कंपनीज चेंजिंग, मान लीजिए 15 कंपनीज उसमें से हट गई जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, आउट ऑफ 50 15 कंपनीज आर आउट नाउ इन सेकंड ईयर,
So my investment to those 15 companies would remain same, or that will change or replaced by the new 15 companies. वेरी गुड क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जब हम इंडेक्स फंड के बारे में बात करते हैं ना, तो इस बास्केट के अंदर जो भी खिचड़ी पकती है ना, आपको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, आपने बस एक बास्केट ले लिया और बास्केट लेके घर आ गए। अब इसके अंदर 15 कंपनीज आ रही हैं, जा रही हैं, आपको उससे कोई मतलब नहीं। इस फंड को एग्रीगेट करके जो रिटर्न होगा वो आपको मिल जाएगा। बट अगर यही सेम चीज अगर आप यहाँ अप्लाई करेंगे, तो आपको अगर जो फंड मैनेजर ने मान लो कि एक स्मॉल कैप शेयर ले लिया था, मान लो अतुल ऑटो का शेयर ले लिया था, फॉर एग्जांपल ले लिया, अतुल ऑटो डूब गई क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी थी, ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, तो ये डूब गई। आपको लॉसेस इसमें होगा या उसमें होगा? बिकॉज फंड मैनेजर हैज चूज़ एंड टेक। अब स्मॉल कंपनीज कभी-कभी क्या होती है, बूम की वजह से बहुत ज्यादा रिटर्न तो दे देती है, बट बहुत जल्दी गिर भी जाती है। बट मैं इसलिए निफ्टी 50 बोल रही हूँ कि निफ्टी 50 में इंडिया में कुछ भी हो जाए, मार्केट कभी बंद नहीं होगा। 50 कंपनीज घट सकती हैं, बढ़ सकती हैं, बट बंद नहीं होंगी या एकदम से नहीं घट जाएगी। प्लस आपको फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं, आपका फंड मैनेजर ने अगर गलत डिसीजन ले लिया, वो आपका डिसीजन गलत हो गया ना एक तरह से। बट यहाँ तो आपको कुछ डिसीजन ही नहीं लेना है, आपने बस फंड खरीदा, इन्वेस्ट किया और वो सारा प्रोपोर्शनेटली आपका निफ्टी खरीद लिया आपने एक तरह से। एक्सपेंस रेशियो भी आपको कम लगा। अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। उसका वो डाइवर्सिफिकेशन कैसा रहता है, लाइक इट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेटेड एवरेज। weighted average. So depending upon the size of the company and the Yes. share price. अब मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ। अब इंडेक्स फंड का जब आप सर्च करोगे तो इंडेक्स फंड आप उसमें लिखा होगा निफ्टी इंडेक्स फंड, निफ्टी 100, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। निफ्टी 500 अभी तक इंडेक्स फंड इंडिया में नहीं आया है। BSE 500 आया है, इट केम जस्ट लास्ट ईयर, सो इट इज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ। वो 500 मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 500 कंपनीज हैं उसका एक फंड उन्होंने बनाया है। इट इज अ वेरी न्यू थिंग, सो यू कैन थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट इन दैट आल्सो। मैं आपको बाकी लाइव एग्जांपल एक क्वेश्चन और I just need to know कि एज ए इन्वेस्टर मेरा क्या रोल होता है कंपनी के फंड्स की वैल्यूएशन पर। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, मैं उसका इन्वेस्टर में शेयर होल्डर हूँ, ठीक है, मैंने उसके शेयर ले लिए। नाउ हाउ माय कंट्रीब्यूशन टू द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड्स देयर व्हेन आई परचेज द शेयर एंड क्विट। नाउ आई हैव 50 shares or say 500 shares in my bucket, एंड कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कुछ मतलब कहाँ से वो वैल्यूएशन उसकी बढ़ रही है, घट रही है, उसमें मेरा कोई रोल है या नहीं है इन्वेस्टर का? मतलब इन्वेस्टर आपने देखो स्टॉक, अगर आप, मैं भी स्टॉक की बात नहीं कर रही, लेकिन अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आप शेयर को एनालाइज करके खरीद लेते हो। उसके बाद मार्केट मूव हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि शेयर बहुत गिर रहा है तो ये आपका डिसीजन है, आप सेल कर दो। मतलब मेरा कोई एक्टिव रोल नहीं है। अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ। मैं आपको एक्सपेंस रेशियो का, आपको लग रहा होगा कि एक्सपेंस रेशियो जनरली क्या होता है, 1 या 2% का डिफरेंस होता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो किसमें होता है ज्यादा? एक्टिव म्यूचुअल फंड, एक्टिव फंड्स में, रेगुलर फंड्स में। ओके, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाती हूँ। जैसे आपको लगता है कि 1% 2% से क्यों लफड़ा लेना है, मैं फंड मैनेजर के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूँ, क्यों मैं डायरेक्ट फंड्स में जाऊँ, क्यों मैं इंडेक्स फंड खरीदूँ। तो उसका एक मैं लाइव एग्जांपल आपको दिखाती हूँ कि छोटे से चीज़ से कितना फर्क पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल सर ने बोला कि मैं म्यूचुअल फंड एक्टिव फंड मैनेजर के मतलब उससे बात करके मैं लूँगा, मैं उसको पैसे दे दूँगा, ठीक है। अब मैं देखती हूँ, सर ने ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस मान लो, आपको किसी भी कभी भी फंड के बारे में सर्च करना होगा तो यू कैन गो टू valueresearchonline.com एंड यू कैन सर्च इट। अब आप देखो ICICI, आप सबसे खास बात देखना कि जब भी आप कोई फंड देखोगे ना, हमेशा ये ऑटोमेटेड रेगुलर प्लान ही दिखाता है।
बिकॉज कोई भी अपनी नौकरी खतरे में नहीं डालना चाहता। अगर आप डायरेक्ट फंड्स लेना शुरू कर दोगे, इंडेक्स फंड लेना शुरू कर दोगे, तो फंड मैनेजर की नौकरी चली जाएगी, ठीक है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इन इंडिया इंडेक्स फंड इज नॉट बूमिंग अप। इन अमेरिका 93% of the population is investing in index funds, but in India people are not aware, but because no one is talking about it. So आप देखो यहाँ पे आप ICICI Prudential Balance Advantage Fund देखोगे तो इसमें रेगुलर प्लान आता है। अब आप इसमें नीचे जाओ, नीचे जब यहाँ जाओगे तो आप देखो इसका एक्सपेंस रेशियो इज 1.73। ओके, आई जस्ट शो यू द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंस रेशियो। अभी आप और कुछ किसी भी चीज पे फोकस मत करो और कोई डेटा पे फोकस मत करो, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एक वो दिखाती हूँ, फंड दिखाती हूँ। अब सर ने बोला कि ठीक है, मैं सर आप since you are an active investor, you know about index fund, okay, now you say that no fine, I will not invest in active mutual fund advisor, I will manage on my own, okay। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ठीक है मैं UTI का इंडेक्स फंड ले लेता हूँ। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी HDFC निफ्टी फंड, कोई भी आप कोई भी फंड हाउस से ले सकते हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ बस। आपने UTI उस पर्टिकुलर बैंक में आपका नाम होना चाहिए। नहीं, सबसे खास बात इसकी यही है, निफ्टी, आप देखो इसमें निफ्टी इंडेक्स फंड आएगा, ये देखो UTI Nifty Index Fund. Always whenever you are going to buy, you have to see that it is an index fund. It will be written in the fund. ठीक है। अब आप देखो अगेन ये रेगुलर प्लान है, आपको रेगुलर प्लान कभी नहीं लेना है, आपको यहाँ डायरेक्ट प्लान में जाना है। डायरेक्ट प्लान जब आप क्लिक करोगे, आप देखो इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है। What is the definition of expense ratio? Expense ratio is the charges that mutual fund advisor takes from you. It is a brokerage That's commission. 1.73% in the earlier case. Yes. Here it is just 0.1. Because that was active mutual fund. You are investing through a mutual fund advisor. Here you are investing on your own. You are not taking help of anyone. ठीक है? On an average आप देखो मिनिमम, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 1.63% आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ना, अगर आप म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्ट करते हो। अब आपको लग रहा होगा कि 1% इंटरेस्ट से क्या फर्क पड़ता है, मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाऊंगा, बिकॉज आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको हमेशा लगता है कि ठीक है मैं म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू जाता हूँ, वो अच्छे स्टॉक्स परचेज करेगा और मुझे दे देगा, बट मैं उस 1% का आपको डिफरेंस दिखाना चाह रही हूँ। उस 1% का कितना डिफरेंस पड़ता है आपके इन्वेस्टमेंट में। फॉर एग्जाम्पल रमेश जी ने बोला कि मैं फंड मैनेजर के थ्रू जाऊंगा, गुड नेम इमाद सर ने बोला कि मैं पैसिव इन्वेस्टमेंट करूंगा, मतलब मैं इंडेक्स फंड लूंगा। फॉर एग्जांपल निफ्टी से आपको इंडेक्स फंड से 15% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, बट रमेश सर आपको 14% ही मिलेगा। मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ, वैसे तो 1.63% है डिफरेंस, लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि 1% इनका लूज हो गया, तो आपको सिर्फ 14% मिलेगा। ओके, 14% इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रखना है? 10,000 अमाउंट। ओके, नंबर ऑफ पीरियड्स में 10 रखती हूँ। $10,000 a month आपने 10 years के लिए बोला ना? $10,000 a month आपने 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपने 10,000 10 years के लिए इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका हो गया 37,000। एक्चुअली हम थोड़ा बड़ा फिगर लेते हैं, उससे ना ज़्यादा क्लियर हो। 1 लाख ले लेते हैं। हाँ 1 लाख, वैसे आपको ज़्यादा डिफरेंस फील होगा। ये आपका 3,70,372 हो गया। अब सर ने बोला कि नहीं मैं निफ्टी फंड्स लूँगा, मैं इंडेक्स फंड्स लूँगा,
तो सर का आई थिंक 16% मैं इंटरेस्ट पे 2% का मैं डिफरेंस ले रही हूँ, ठीक है। अब सर ने क्योंकि खुद से इन्वेस्ट किया है, he is an investor on his own, he is not investing through an intermediary, he is not investing through a fund manager, so he has invested 10 years के लिए इन्वेस्ट किया है। Sir will earn 4,41,143 in the same time with the same amount. But just because रमेश जी ने बोला कि नहीं मेरे को नहीं इन्वेस्टमेंट समझ पड़ता है, मैं फंड मैनेजर के थ्रू लूँगा, बट सर ने बोला कि नहीं मेरे को आता है इन्वेस्ट करना, एटलीस्ट मैं निफ्टी में तो इन्वेस्ट कर ही सकता हूँ, मुझे इसके लिए कुछ एक्सपर्ट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसके लिए कोई फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं है। सर आपको 70,000 का लॉस हो जाएगा अगर आप फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करोगे। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हाँ, अगर आप इसको 1 CR कर रहे हो तो फिर आप इसको 1 CR दो, आप इसको 10 लाख भी कर लो। देखो तो 10 लाख में कितना डिफरेंस आ गया। This is just because a small thing that we generally tend to ignore. बहुत लोग तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है उनको पता नहीं होता, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको क्या कितना लॉस होता है। So you can see just because a simple thing, because you are not investing through yourself and you are not investing through direct funds, you are bearing a loss of 7 lakh with the same amount, with the same time. Okay? So now अब इतना एडवांटेज होने के बाद भी क्यों इंडेक्स फंड के बारे में लोग बात नहीं करते हैं, इसका रीजन आपको पता चल गया होगा। बिकॉज अवेयरनेस नहीं होता है, लो कमीशन रेट टू द डिस्ट्रीब्यूटर, नॉट प्रेवलेंट इन इंडियन मार्केट, एंड म्यूचुअल फंड एडवाइजरी एग्रीगेटर्स आर इन फियर ऑफ लूजिंग जॉब्स। अब मैं इसमें एक फियर भी होता है, मतलब हम इंडियंस थोड़ा सा डरते नहीं हैं कि हाँ। अरे अरे आप उनको आपको famous बोलते हैं है। आप देंगे, मतलब दिस इज द फियर फैक्टर एक्चुअली। हाँ, One more reason is there that इंडिया में ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ है and our market is just 29 years old. Don't you think that's why Indians are fearful? Means अमेरिका में बहुत पहले से चल रहा है ये इन्वेस्टमेंट and we are Actually, it is a social reason I cannot answer because figures में हम नहीं बात कर सकते कि why fear is there in India. we are But- very new to this market No, thing. we are not new. Share market came in like बहुत पहले से ट्रेडिंग हो रही है, बट हमें पता नहीं है। If I talk about see this data, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 1979 से ट्रेड होना स्टार्ट हो गया है। एंड अगर किसी ने 1979 में 100 रुपए लगाए थे मार्केट में, तो उसका 2020 में 40,000 हो गया है, 400 टाइम्स हाई। example of Havells and global companies. Mainly, I have seen in the magazine कि 1996 में Havells जब आई थी नई, तब मतलब जो भी उसका रेट था 100 रुपये, and जिसने उस समय पर 1 लाख रुपये लगाए थे, in 2015 they have got around 1.5 CR. Exactly. These ads are very 150 viral on times Facebook more. nowadays. If you have invested 1 lakh in Havells or Bajaj, so your total amount would be around 1 CR, 2 CR, somewhere around that. We are seeing those things आप nowadays. exactly इसी से देखो, Yeah, means like 100 का 40,000 हो गया। उस बंदे ने कुछ नहीं किया होगा, 100 रुपए का शेयर भी ले लिया होगा उस टाइम पे। 100 रुपए का नहीं, सेंसेक्स में आप शेयर भी ले सकते हो, इट्स नॉट इंडेक्स फंड। अगर उसने 100 रुपए डाले होंगे, अगर उसका 40,000 रुपीस हो गया होगा। जस्ट इमेजिन 400 टाइम्स इंक्रीज। सो इट इज नॉट दैट इंडिया इज नॉट अवेयर। हाँ, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, लोग डरते हैं। अब डरते क्यों है? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। आपको जब किसी चीज की अब आप डरोगे क्या इन्वेस्ट करने से? नहीं डरोगे ना, यू विल बी स्माइलिंग। नो, I already do, so I'm aware of this
That's So that very you- good. That's very good. That you're so active into it. And now I think सब लोग करेंगे. रमेश सर आप अब तो आप नहीं करोगे. आप तो मेरे बगल में ही बैठते हो. आप ये बात है आप वापस वीडियो जाएंगे Okay, so can you see the big difference that market is creating in our lives? How wealthy we can become if we start our passive investments. ये तो मैं आपको ऐसा कुछ theoretical knowledge नहीं दिया. All I have shown you is practically here. I have proved it and shown. So अब आपको क्वेश्चन तो मन में चल रहा होगा ना कि इंडेक्स फंड कैसे खरीदें. ठीक है, आप मैंने बताया, उसकी थ्योरी बताई मैंने कि क्या होता है इंडेक्स फंड, क्या होता है मार्केट, बट हाउ टू बाय इट. उससे पहले मैं आपको इंडेक्स फंड का एक, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना, बट एक टर्म था तो मैंने सोचा कि मैं ऐड ऑन में आपको बता देती हूँ. इंडेक्स फंड एक होता है ETF. अगर आप निफ्टी का फंड, निफ्टी का जो फंड है, इंडेक्स फंड इज निफ्टी फंड मींस 50 कंपनीज का जो फंड है, इसको हम इंडेक्स फंड बोलते हैं. आप इसको ETF के थ्रू भी ले सकते हो. ETF मींस एक्सचेंज में ये ट्रेड हो रहा है. ये एक्सचेंज में ट्रेड नहीं हो रहा, मतलब ये फंड है, बट इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी अगर आप ETF के थ्रू लोगे. मैं आपको ये एग्जांपल या ये कॉन्वर्सेशन में 5 मिनट्स का इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है. अगर आपको किसी ने बताया कि आप ETF ले सकते हो तो यू विल टेंड टू बाय ETF बिकॉज हम लोग क्या होता है ना, मीडियंस को कैची चीजें ज्यादा पसंद आती हैं. थोड़ा पंगा हो तो लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं. ठीक है, तो आप कभी भी ETF मत लेना अगर आपको निफ्टी का फंड लेना है. Why? Because through if you have to buy Nifty index fund ETF, you have to have Demat account. पहली बात तो सब लोग डीमैट अकाउंट का नाम ही सुन के डर जाते हैं कि अभी डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, छोड़ो यार क्यों इन्वेस्ट करना. It's cumbersome process for most of us who doesn't know. डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, प्लस जब आप डीमैट अकाउंट खोलोगे तो आपको ब्रोकरेज चार्जेस देना होगा. ब्रोकरेज चार्जेस के साथ आपको डीमैट चार्जेस भी देना पड़ेगा. तो अब आप जो भी कमा रहे थे आप फिर से यहाँ पंगे में फंस गए. आपको फिर से यहाँ ब्रोकरेज चार्जेस, मान लो 1% भी मिनिमम लेके चल रही हो, कि अगर आपका कट जाता है फिर से वही बात हो गई, आपका और 1% चला जाएगा. So don't invest through ETF. Always go through direct investment options of index fund. अब इंडेक्स फंड में जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो आपको कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है. आपको जस्ट एक डायरेक्ट फंड का एक नियर जो 0.10% का चार्जेस था आपका बस वो पड़ता है. आपको मैंने यूटीआई में भी दिखाया था. तो इसमें नो डीमैट अकाउंट, नो डीमैट अकाउंट मींस नो चार्जेस. ठीक है, अब इसको खरीदने के 2 तरीके हैं. आपको कोई भी वर्कशॉप में आपको लोग बताएंगे कि क्या होता है मार्केट, बट कोई आपको खरीदना बेचना नहीं बताता है. एंड दिस इज अ फ्री वर्कशॉप. स्टिल आई एम शेयरिंग विद यू बिकॉज आई रियली वांट कि आप इन्वेस्टर बनो और आप इन्वेस्टमेंट आज ही स्टार्ट करो. ठीक है, तो अब आपको मन है अगर इंडेक्स फंड खरीदने का तो आपके पास 2 ऑप्शंस है. या तो आप ऑनलाइन मोड से खरीद सकते हो या आप ऑफलाइन मोड से खरीद सकते हो. अब जब ऑफलाइन मोड में आप की बात करते हैं, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि डरते हैं कि मैं ऑनलाइन कैसे इन्वेस्ट करूं, पर मेरे पैसे ज़्यादा कट जाएंगे. बहुत सारे रीजंस होते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू दैट रीजन. तो अगर आप ऑफलाइन मोड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यू हैव टू विजिट नियरेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस. बहुत सारे बैंक्स होती हैं, उनका म्यूचुअल फंड हाउस होता है जो ब्रांच ऑफिस होता है. आप वहाँ जाएं, वहाँ जाके आप बोलो मुझे इंडेक्स फंड खरीदना है, मुझे फॉर्म दो. जैसे ही आप ये बात बोलोगे बैंक में, आपके पास 10 लोग आ जाएंगे, आपको घेर के खड़े हो जाएंगे. वो बोलेंगे कि नहीं आपको किसने बोला है इंडेक्स फंड खरीदने के लिए, आपको मैं इतना अच्छा फंड बताता हूँ, आप फंड खरीदो. और वो जो 10 लोग होंगे वो कौन होंगे? फंड मैनेजर होंगे. क्योंकि उनको पता है कि आप इंडेक्स फंड ले लो, उनको कोई फायदा ही नहीं हो रहा. फिर वो आपको आके बोलेंगे कि फंड ले लो और आप फंड लेके चले आओगे घर पे. बट आपको ऐसा नहीं करना है. You have to be firm on your decision that you have to buy index fund, Nifty index fund, no matter what your fund manager is telling. Okay? You will just fill up the form and उसके पहले एक फॉर्म देगा आपको, उसमें आपको फिल करना है फॉर्म.
आपको बैंक अपना आधार ये सब लेके जाना, बट इससे भी पहले आपको एक KYC कराना होगा। दिस नो योर कस्टमर इज नॉट लाइक बैंक। अगर आपको बैंक में KYC किया हुआ है तो आप सोच रहे हो कि ये सेम KYC यहाँ पे यूज होगा, तो ये KYC इज डिफरेंट। दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट KYC। अगर आपने आज तक कभी नहीं इन्वेस्ट किया है तो अगर आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपको बैंक वाला बोलेगा, फंड हाउस बोलेगा कि आप अपना KYC कराओ। ठीक है, तो आपको KYC कराना पड़ेगा। इसमें अगर आप ऑफलाइन मोड में जाते हो तो आपको 15 डेज का टाइम होता है, आपका KYC हो जाता है। तो आप ये दोनों काम, इन्वेस्टमेंट प्लस KYC एक साथ भी कर सकते हैं। और अगर आपको KYC ऑनलाइन मोड में करना है तो कुछ ऐप्स हैं, जैसे स्क्विरल ऐप है, आप उसमें भी ऑनलाइन मोड में KYC कर सकते हैं। आपको सिग्नेचर्स और अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजना होता है और वो आपका हैंड टू हैंड KYC कर देते हैं। ठीक है, स्क्विरल ऐप आप ले सकते हो। अब आप म्यूचुअल फंड हाउस में अब आप इसमें से एनालाइज करके जाओ। मैंने वैल्यू रिसर्च की साइट भी आपको बता दी है। आप उसमें से जो भी आपको मन है, HDFC, UBI, बहुत सारे इंडेक्स फंड्स हैं, आप रिसर्च करके जाओ। जिसका भी एक्सपेंस रेशियो आपको सबसे कम लगेगा आप वो फंड बाय करो। अब ये तो खत्म हो गया ऑफलाइन मोड। अब मैंने कम टू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड आप दो तरीके से खरीद सकते हो। या तो आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे डायरेक्ट चले जाओ, डायरेक्ट जाके वहाँ इन्वेस्ट का ऑप्शन आता है, यू इन्वेस्ट देयर, और यू गो टू एग्रीगेटर्स वेबसाइट। अभी ये बहुत लोगों को पता नहीं है, MFU इंडिया इज अ वेबसाइट जो कि सारे म्यूचुअल फंड हाउसेस ने मिलके इसको बनाया है। अगर आप इसमें मान लो म्यूचुअल फंड वेबसाइट में अगर आप इंडिविजुअली बाय करने लगोगे तो आपको सब फंड हाउस का लॉगिन आईडी पासवर्ड याद रखना होगा। बट अगर आप एग्रीगेटर की वेबसाइट से यहाँ से अगर म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो ये सारा जो आपको इंडिविजुअल लॉगिन आईडी पासवर्ड है, ये सब का रिफ्लेक्शन एक में ही आ जाएगा। तो यू चूज आपको कौन सा चीज सही लगता है, आप खरीद दो। ओके, एक्सिस्टिंग फंड्स को मैनेज कर सकते हैं। एक्जिस्टिंग फंड ऑलरेडी ले लिया ना, ये मतलब मैनेज आप बाय कर लो, उसको सरेंडर कर दो, नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, उसको पैसे को निकाल लो और निफ्टी में डाल दो। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि, हाँ। जो इससे प्रॉफिट होता है, मतलब जो गेन हो रहा है, उस पर भी टैक्सेस देने होते हैं। टैक्सेस का अलग चीज है, टैक्सेस देंगे बट उसका एक उतना ज़्यादा नहीं होता है, आपकी टोटल इनकम में ऐड हो जाता है वो। मतलब 5 बजे करोड़पति की तरह तो नहीं, 33% ले लिया। नहीं, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आपको कंसल्टेंसी फीस चार्ज करूँ ना, आपसे थोड़ी। ओके, सो अभी आप समझ गए इंडेक्स फंड को कैसे खरीदना है। अब आप जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाते हो तो कैसे आप जाकर खरीद सकते हो। मतलब अभी खरीदना तो नहीं बताऊंगी, बट म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे आप जाओगे वो मैं दिखा देती हूँ आपको। जैसे आप UTI म्यूचुअल फंड में जाओ, UTI आप कोई भी फंड हाउस में HDFC MF डाल सकते हो, UTI MF डाल सकते हो। तो जैसे UTI MF जाओगे, यहाँ लॉगिन आईडी होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड से आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड से क्रिएट कर लेना अकाउंट एंड यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। आई शो यू अ वीडियो जिसमें पूरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है कि आप एंड तक आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, वो पूरा वीडियो है। तो जस्ट 5 मिनट्स में मैं उस वीडियो को प्ले कर दूंगी आपके लिए। Okay, so before ending the session, since I have called you here, तो मेरा ड्यूटी बनता है कि आपको बोनस टिप देके भेजूं। तो देयर सर आपका आंसर इसमें हो जाएगा एंड आपका भी आंसर इसमें मिल जाएगा। ओके ओके, सो माय फर्स्ट बोनस टिप इज इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड एंड यू आर सैटिस्फाइड आल्सो विद दिस। अभी तक इस सेशन के बाद आप बहुत हद तक सैटिस्फाइड होंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, यू आर विद मी और नॉट? सेकेंड ऑप्शन, आपका फर्स्ट चीज ये है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। सेकेंड है SIP करो। डोंट गो, जब आप इन्वेस्ट करने जाओगे तो आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, आइदर SIP ऑप्शन या लमसम ऑप्शन।
हर मंथ एक स्पेसिफाइड सम जितना आपने बैंक को बोला हुआ है आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एसआईपी। ठीक है, अब जब आप एसआईपी करते हो तो ये हमेशा ध्यान रखना कि आप लॉन्गर पीरियड के लिए इन्वेस्ट करो, मतलब मिनिमम आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करो। दिस इज माय बोनस टिप, ये मेरा एडवाइस है। आप यू कैन लाइक कीप इट फॉर 5 इयर्स आल्सो, बट टू सी द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट you should keep it for 10 years. Okay. Third is okay, SIP का मैं बता रही हूँ कि मैं क्यों SIP बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि जब आप लमसम पैसे डाल देते हो इकट्ठा तो आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से बहुत फर्क पड़ता है। आपका ये एकदम से अगर मार्केट डाउन हुआ तो ये 10,000 एकदम से गिर जाएंगे, अगर मार्केट ऊपर हुआ तो ये 10,000 मतलब ये 10,000 ही ऊपर नीचे बढ़ते रहेगा। बट अगर आप SIP करोगे तो अगर मार्केट गिरा हुआ है तो आपके कम पैसे से ज्यादा शेयर खरीद लोगे आप, और जब मार्केट बढ़ा हुआ है तो अपने ज्यादा पैसे से कम शेयर खरीदोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो लॉस और गेन है वो बैलेंस होगा और आपको मार्केट की फ्लक्चुएशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू इन्वेस्ट इन SIP। थर्ड इज चूज फंड्स विद लो एक्सपेंस रेशियो। ये तो सबको क्लियर होगा, व्हाई आई टोल्ड यू टू चूज लो एक्सपेंस। And now, the most important thing is always invest in growth option. जब आप invest करोगे तो आपको उसमें पूछेगा you want to invest in growth option और dividend option. Okay? मैं दोनों का difference आपको बताती हूँ। एक होता है growth, एक होता है डिविडेंड ऑप्शन। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें फिल करना होता है, तो आप डिविडेंड ऑप्शन कभी मत नहीं करना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है ये आपसे बिना पूछे उस डिविडेंड को फिर से इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, डिविडेंड इन्वेस्ट। बट अगर आप डिविडेंड ऑप्शन चूज करते हो तो आपका फंड का एज इट इज ग्रो कर रहा है बट आपको डिविडेंड मिलते रहेगा इसका। बट अगर आपको डिविडेंड मिलेगा तो फिर से वही बात हो रही है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा ही नहीं होगा। सो नेवर चूज फॉर डिविडेंड। दीज आर वेरी माइनर थिंग्स बट यू कैन सेव लॉट्स ऑफ मनी एंड आई हैव शोन दैट। So growth option is also clear and also the ये तो सबसे important है, इसको highlight कर देना चाहिए। Most of us does this. Never invest in haste and also never think investment as entertainment. It is not entertainment. जल्दीबाजी में कभी भी इन्वेस्ट मत करना, जो आपको नहीं समझ पड़ता है इन्वेस्ट नहीं करना। You will always end up in trouble. So always remember this, always. आपको अभी सेशन के बाद भी अगर आपको और डीप नॉलेज लेना है तो आप रिसर्च करो, पढ़ो, जानो, तब इन्वेस्ट करो। अगर आपको मेरे सेशन के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज डोंट इन्वेस्ट। बट आप निफ्टी में वैसे आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ऑलवेज इन्वेस्ट फॉर 10 इयर्स। इसका भी रीजन मैं बता रही हूँ बिकॉज मैं वॉरेन बफे को अपना आइडल मानती हूँ। तो वॉरेन बफे सेज दैट नो मैटर हाउ ग्रेट द टैलेंट और एफर्ट, something just takes time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. It takes 9 months time. So वो टाइम आपको देना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट को, तभी आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकता है। ओके, अब मैं आपको 4 मिनट्स का वीडियो दिखा रही हूँ जिससे आप इन्वेस्ट करने में मास्टर हो जाओगे। इन द मीन टाइम मेरा YouTube चैनल है CASS ब्लॉग्स, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं अपडेट्स डालते रहती हूँ, तो वो रेगुलर अपडेट्स आपके पास आ सकता है। रजनीश कैन हेल्प देम विद द YouTube चैनल। एंड आपको अभी एक फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा, आप उसमें अपना जेन्युइन फीडबैक डालिए सो दैट कि अगर मुझे भी कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट करना हो तो आई कैन डू दैट।
रजनीश जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आप इस सेशन में आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओगे। तो बस हमें सेशन को एंड कर रहे हैं और ये वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एग्जैक्टली इस वीडियो को देख करके 100% गारंटी है आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप HDFC ठीक है। दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। तो आप 2 मिनट के लिए मतलब 4 मिनट्स के लिए आप प्लीज इस वीडियो पे focus करो। आप HDFC की साइट पे जाओ। HDFC की साइट पर अगर आपने लॉगिन आईडी नहीं क्रिएट किया हुआ है तो यू विल हैव टू क्रिएट लॉगिन आईडी पासवर्ड। जब आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हो प्लस आपके पास एक मोबाइल में OTP आता है, आप उसके बाद लॉगिन कर सकते हो। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हो कि मेरे पास आप OTP एंटर करने के बाद आप देखो ये डैशबोर्ड मेरा खुल के आ रहा है। ठीक है, अब मुझे SIP करना है निफ्टी इंडेक्स फंड, तो मैं ट्रांजैक्ट नाउ में जाऊंगी, यहाँ SIP क्लिक करूंगी। ठीक है, जैसे ही आप SIP में जाते हो तो ये आपसे पूछता है, ये आपको आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को रजिस्टर करता है। तो ये आपसे पूछता है कि इन्वेस्टमेंट आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में करना चाहोगे या प्रोसीड विद न्यू पोर्टफोलियो करना चाहोगे। तो मैं एग्जिस्टिंग को क्लिक कर रही हूँ। आप न्यू में भी कर सकते हो। इसमें आ गया इन्वेस्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर। आई हैव ऑलवेज सेड हम हमेशा डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं लेंगे। तो इसमें मैंने नो किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम ऐड स्कीम करेंगे। अब ऐड स्कीम में आप यहाँ से जा सकते हो सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आप HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 देन डायरेक्ट में जाओ। ओके, अब देन SIP आप हमेशा मंथली करोगे, क्वार्टरली कर सकते हो, ये आपका चॉइस है। मैंने मंथली किया है। अब मैंने मंथली मान लो सोचा ये है। अब आप इन्वेस्टमेंट मंथली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो। तो मुझे मान लो मंथली करना है 1000 रुपीज। ओके, या लेट्स से 2000 कर लेते हैं इसको। 2000 रुपीज मुझे मंथली इन्वेस्टमेंट करना है। अब स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको देना होगा किसको, अपने बैंक को। तो मेरा ICICI बैंक है, मैंने बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको मिनिमम 10 इयर्स के लिए कर रही हूँ। ओके, मार्च 8 से एंड डेट है 30। अब मैं एंड डेट सेलेक्ट कर रही हूँ। एंड डेट मुझे 2030 में चाहिए। 2030 में एंड कब होना चाहिए, तो मार्च 8। ठीक है, ओके। अब आप प्रोसीड टू ट्रांजैक्ट करना। अब आप देखो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स आ गया, पोर्टफोलियो नंबर आ गया, ट्रांजैक्शन टाइप में SIP आ गया, स्कीम आ गया HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डायरेक्ट। ऑप्शन क्या कौन सा है, ग्रोथ ऑप्शन। मैंने हमेशा बोला ग्रोथ ऑप्शन इन्वेस्ट करना होता है। ग्रोथ ऑप्शन मींस आपका जो डिविडेंड आपको मिलेगा इसके ऊपर, ये डिविडेंड भी आप री इन्वेस्ट कर रहे हो। सो दिस इज ग्रोथ ऑप्शन। अगर डिविडेंड ऑप्शन आप क्लिक करते तो जो भी पैसा आपको डिविडेंड मिलता है वो सारा आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, बट मैंने री इन्वेस्ट किया हुआ है। तो यू ऑलवेज, इससे क्या होगा, आपका कंपाउंडिंग इफेक्ट से आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। Amount 20,000, investment frequency is monthly, start date is 8th March 2020 and end date is 8th March 2030. Payment option is standing instruction below, name ICICI Bank, मेरा मोबाइल नंबर आ गया, मेरी email ID है। I have read and understood all terms and conditions of investment. And then transaction acknowledgement will be sent through SMS to your email ID and folio number of complete transaction. Dear Shalini, thank you for providing bank details. Please add HDFC mutual fund as below to your bank account. अब आप यहाँ पर आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को। अब आप अपने बैंक को ऑनलाइन बैंकिंग में जाना। ऑनलाइन बैंकिंग में आप जा करके म्यूचुअल फंड HDFC म्यूचुअल फंड को ऐड कर देना और वहाँ से अप्रूव कर देना। तो आपके हर मंथ अकाउंट से ये पेमेंट अप्रूव हो जाएगा। आई होप इस वीडियो को देख के आप इन्वेस्ट कर सकते हो इंडेक्स फंड में। Or not only in HDFC, you can invest in any other funds according to your choice. Thank you.
to do. हाँ ठीक है. और मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सर का डाउट था कि कितना इन्वेस्ट करें. तो फॉर एग्जांपल आप जितना भी इनकम आप कमाते हो, जितना भी सैलरी आपकी आती है, आपका रूल ये होना चाहिए कि 80% यू स्पेंड ऑन योर एक्सपेंसेस एंड 20% यू सेव. और अगर आप 20% सेव कर पा रहे हो, एक सेकेंड, जस्ट अगर आप 20% सेव कर पा रहे हो तो उसमें इट इज अ रूल दैट यू हैव टू इन्वेस्ट 10% इन इंडेक्स फंड. दिस इज मैंडेटरी. बाकी का 10% आपको जिस मर्जी में भी करना है, शेयर्स में कर सकते हो, लैंड प्रॉपर्टी जिसमें भी आपको मन है, एफडी में कर सकते हो, बट दिस इज मैंडेटरी. एंड लाइक देयर कैन बी फ्यू पीपल हु कांट इवन सेव 20%. उनकी बहुत सारी लायबिलिटीज हैं, बहुत सारे खर्चे हैं उनके. इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल. सो डोंट बी पैनिक. अगर आप मान लो कि 90% खर्च करते हो और 10% इन्वेस्ट करते हो, तब ये 10% आप 100% इंडेक्स में ही डालें. नो अदर इन्वेस्टमेंट अलाउड. 100% इंडेक्स. एंड इवन इफ यू कांट सेव दिस 10%, आप बोलते हो कि मेरा 100% खर्च हो जाता है, मेरे पैसे बचते नहीं हैं, इतने सारे खर्चे हो गए, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू नाउ कि प्लीज 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 आप 500 अ मंथ जरूर इन्वेस्ट करिए. दिस इज द मिनिमम SIP इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड डू. 10 years में यही 500 रुपीज अगर आप हर मंथ इन्वेस्ट करते हो तो 1,37,000 हो जाता है. तो मैंने आपको दिखाया. ठीक है. So sir, is your doubt clear? Yeah, that's it. आपका भी कुछ हो? No, it got cleared. I was thinking of single investment, which is risky. So index fund. सर्च किया. ओके. सो थैंक यू. मुझे लगता है आप लोग को बहुत बेनिफिट मिला होगा. Thank you. You can wait. I mean, Coffee is tea and coffee is there. It's coming. अब किसको कुछ डाउट है तो you can ask.